Hello friends, welcome to our channel Kraken. So today in this video we are going to discuss a very important for the next main exams like SBIPO and banking main exams, and this will be more focused regarding the RBI grade B, which will be going to conduct very soon. Right. So here we are targeting the RBI grade B, and here we are going to start the December first week current affairs series. So we have already uploaded some other series, you can follow that, and let's start the video for the day. So here there are very important questions. So this is the first question. What is the theme of Indian Navy Day? So Indian Navy Day has been celebrated every year. कब होता है हमारा? December 4 को every day हमारा celebrate होता है Indian Navy Day, and this time the theme, what is the theme? So इस टाइम आपका जो थीम है वो है इंडियन नेवी कम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव. So option number C is the correct answer. So next question जो है हमारा, what is the theme of World's AIDS Day? So every year the World AIDS Day has been celebrated on December 1. जो हमारा World AIDS Day होता है वो हमारा सेलिब्रेट हो रहा है December 1 को, राइट. सो इस टाइम हमारा जो थीम है वो है एंडिंग द HIV और AIDS एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. So next one is which book by the author Anita Anand has won the Penn Hassel-Tilghman Prize for the History 2020. So अनीता आनंद जी ने कौन से बुक के लिए उनको अवार्ड मिला है? वो है पेन हासेल टिल्टमैन प्राइज. So here the correct answer is The Patient Assassins, a true tale of masquerade, revenge and the rats. So option number A is the correct answer. So next one is who has been appointed as the new chairperson of National Dairy Development Board NDDB by the Government of India. So जो न्यू चेयरपर्सन है NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उनका नाम है वर्षा जोशी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. For which state has the Asian Development Bank approved a $430 million multi-tranche financial facility MFF to improve the quality and reliability of electricity supply in the state? So Asian Development Bank ने एक how much amount for $430 million financial facility अप्रूव किए हैं for the development of quality and reliability of electricity supply. वो कौन से स्टेट है? सो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के लिए एडीबी ने 430 मिलियन सैंक्शन किया है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड एशियाज बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021. सो कौन सा यूनिवर्सिटी है जो एशियन का जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें टॉप किया है? तो इसका जो आंसर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. एंड इंडिया का कोई भी जो यूनिवर्सिटी है टॉप 10 में नहीं है, पर टॉप 100 में 3 यूनिवर्सिटीज है. तो वो जो टॉप 100 में है उनका नाम है IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, और एक है IIT बॉम्बे का जो रैंक है वो है 47, और IIT दिल्ली एंड IIT मद्रास जो है, और एक है दिल्ली और एक है मद्रास. ये सब IIT है, राइट. सो IIT दिल्ली का कौन सा रैंक है? IIT दिल्ली का है 50 और IIT मद्रास का है 56 और IIT बॉम्बे का है 47. इसको आप याद रख सकते हैं, राइट. सो जो टॉप के है उसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर.
सो नेक्स्ट है हमारा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has launched a tech-based loan management solution, Lens, the lending solution, to speed up and maintain accuracy in online loan processing. So ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग में स्पीड एंड मेंटेन एक्यूरेसी करने के लिए जो बैंक ने एक न्यू लोन मैनेजमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया, उस बैंक का नाम क्या है? उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, और उसका नाम क्या है? लेंस, द लेंडिंग सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। So next है, who has been appointed as the Director General of Border Roads Organizations Group? कौन अभी न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन? सो इसका जो आंसर है राजीव चौधरी जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। और वो किसको सक्सेड किए? जो पहले थे उनका लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। हरपाल सिंह पहले थे, राइट। अभी जो न्यू बने हैं उनका नाम है राजीव चौधरी। So next, recently Vice President Venkaiah Naidu virtually released a commemorative postage stamp in honor of whom to mark his 101 birthday anniversary. So recently वेंकैया नायडू जी ने, अभी हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किए हैं उनका 101 बर्थडे एनिवर्सरी के दिन में। सो उनका जो नाम है आई के गुजराल के मेमोरी के लिए उनका जो बर्थडे एनिवर्सरी में उन्होंने एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Who won the 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स? सो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स अभी रिसेंटली हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? बहरीन में। तो उसको कौन जीते हैं? उनका नाम है लेविस हैमिल्टन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। So next one is, according to the data of Commerce and Industry Ministry, which country emerged as the biggest source of foreign direct investment into India during the first half of current financial year? ये जो current financial year में कौन सा कंट्री जो FDI foreign direct investment में biggest source बना है? So उसका नाम है सिंगापुर, राइट। सो सिंगापुर से हमारा बहुत ज़्यादा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो बिगेस्ट सोर्स बना है। और कौन सेकंड बना है? यूएस जो है उस लिस्ट में सेकंड है, जहां से हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है। फर्स्ट में है सिंगापुर, सेकंड में है यूएस, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Which bank has partnered with Japan's JCB International Co. to unveil a platinum contactless debit card on the RuPay network? कौन सा बैंक है जो जापान JCB इंटरनेशनल को के साथ पार्टनरशिप किया है एक न्यू कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, प्लैटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड रिलीज करने के लिए जो रुपए प्लेटफॉर्म में? सो जो बैंक है उनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ने अभी एक पार्टनरशिप किया है, और जो कि जो है हमारा NPCI एंड जापान JCB इंटरनेशनल को के साथ, राइट। उसका जो नाम रहेगा, ये जो प्रोडक्ट का नाम रहेगा, उसका नाम है SBI रुपे JCB प्लैटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। SBI रुपे, जो रुपे प्लेटफॉर्म हो रहा है तो आपका रहेगा रुपे, राइट। और JCB प्लैटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, JCB रहेगा और उसके बाद रहेगा JCB प्लैटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। सो आंसर है, कौन पार्टनरशिप किया है? SBI ने NPCI एंड JCB के साथ, और JCB कहाँ का है? जापान का है, राइट। सो इनके साथ किया है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे? सो रिसेंटली जो हमारा वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेशन हुआ था, कब हुआ था? वर्ल्ड सॉइल डे हमारा एवरी ईयर December 5th को हमारा सेलिब्रेट होता है, राइट। सो उसका जो थीम था, उसका आंसर था कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। Keep soil alive and protect soil biodiversity. So option B is the correct answer.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट मेमोरियल फॉर ऑर्गन डोनर्स इनॉग्रेटेड? सो एक मेमोरियल फर्स्ट हो रहा है हमारा इंडिया में फॉर ऑर्गन डोनर्स, जो ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनके लिए एक मेमोरियल फर्स्ट हो रहा है, इनॉग्रेट हो रहा है। सो कहाँ पर हो रहा है? वो हो रहा है जयपुर में, राइट। और इन्होंने कौन इसको इनॉग्रेट किए हैं? जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी ने इसको इनॉग्रेट किए हैं और वो कौन है? राजस्थान का सीएम है, राइट। और ये कौन से दिन में हुए? जो हमारा इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है उस दिन ये वाला इनॉग्रेट हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जयपुर है इसका आंसर। Which bank has launched a tailor-made premium banking services to tailor the particular needs of key consumer segment from small business owner to salaried professionals and senior citizens? एक बैंक है जो एक टेलर मेड प्रीमियम बैंकिंग सर्विस लॉन्च किया है, जिसमें टू द टेलर द पर्टिकुलर नीड्स जो कंज्यूमर सेगमेंट है, जैसे कि इसमें सब कुछ को इंक्लूड किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सैलरीड प्रोफेशनल एंड सीनियर सिटीजन, सबको देखते हुए एक न्यू सिस्टम लॉन्च किया गया है, टेलर मेड प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज। वो कौन सा बैंक है? वो जो है वो है अभी येस बैंक। सो येस बैंक ने एक न्यू किया है जिसका नाम है येस प्रीमियर। ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है येस प्रीमियर, राइट। जो वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उसका नाम है येस प्रीमियर। सो आंसर इज ऑप्शन सी। So next one is, what is the new limit of contactless card transaction as announced by the Reserve Bank of India to give a push to the digital payment? So digital transaction को मोटिवेट करने के लिए आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन कॉन्टैक्टलेस कार्ड है उसका जो लिमिट को अभी किए हैं। सो जो न्यू लिमिट है वो है 5000। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो रिसेंटली ये वाला आरबीआई ने पहले क्या था? पहले था 2000, राइट। एंड और एक इम्पोर्टेंट है, अभी फिलहाल उसी के साथ आरबीआई ने ये भी कर दिया है, जो आपका आरटीजीएस जो है वो अभी आपका रहेगा 24 आवर्स। पहले उसका टाइमिंग लिमिट था 7:45 तक, और अभी फिलहाल उसको चेंज किया गया है कि आरटीजीएस रहेगा 24 आवर्स, राइट। एंड ये जो लिमिट था कॉन्टैक्टलेस डेबिट कॉन्टैक्टलेस कार्ड का, उसका हो गया 5000। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एज पर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Asian Development Bank approved a 132.8 million loan to strengthen and modernize the distribution network and improve the quality of power supply to households, industries, business in which state? So Asian Development Bank ने अभी 132.8 million लोन अप्रूव किया है to strengthen and modernize the distribution network and improve the quality of पावर सप्लाई, राइट। सो कौन से स्टेट के लिए ये वाला अप्रूव हुआ है? उसका नाम है मेघालय। सो मेघालय के लिए कितना अमाउंट? 132.8 मिलियन हुआ है, और इसका जो मेन मोटिव है उसका है जो क्वालिटी ऑफ पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए, राइट। सो ये दोनों पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB approved how much loan amount for modernizations, upgradations of power distribution systems in Karnataka capital city of Bangalore. So Bangalore सिटी जो है कर्नाटक का कैपिटल, उनका जो पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड करने के लिए एडीबी ने कितना अमाउंट अप्रूव किए हैं? तो उसका जो आंसर है 190 मिलियन यूएसडी। सो 190 मिलियन यूएसडी अभी अप्रूव हुआ है फॉर कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु, एंड इसका मेन एम है कि उसका जो पावर सिस्टम है उसको अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज करने के लिए, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Who has been elected as the president? Who has been elected as the president of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? FICCI, FICCI for 2020-21। कौन अभी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? सो जो बने उनका नाम है उदय शंकर जी ने अभी न्यू बने प्रेसिडेंट। और किसको सक्सेड किए? जो पहले थे उनका नाम है संगीता रेड्डी।
जब कोई भी आपका न्यू बनते हैं आपको प्रीवियस वाला भी इम्पोर्टेंट रहता है। सो उनका जो पहले वाले थे उनका नाम है संगीता रेड्डी, राइट। सो ये इम्पोर्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Who has been named Times Magazine's first ever Kid of the Year? जो टाइम्स मैगजीन ने एक न्यू के हैं फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर, सो कौन नेम हुए हैं? सो उनका नाम है गीतांजलि राव। सो गीतांजलि राव हैज बीन नेम्ड एज द टाइम्स मैगजीन्स फर्स्ट एवर किड। जो है ये है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। सो गीतांजलि राव कौन है? जो इंडो अमेरिका, तो इंडियन वन है एंड अमेरिका साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर, राइट। सो उनका एज कितना है? एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। सो उनको टाइम्स मैगजीन का फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड उनको मिला है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Who attained the highest ever rating point for batsmen in the International Cricket Council in men's T20 player rankings? सो T20 मेंस प्लेयर रैंकिंग में कौन से बैट्समैन को हाईएस्ट एवर पॉइंट मिला है अभी? सो उनका नाम है डेविड मलन। सो जिनको मिला है वो है डेविड मलन, राइट। सो ये कौन से टीम से खेलते हैं? इंग्लैंड से खेलते हैं, राइट। सो इनका जो अभी फिलहाल ही जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट में अभी हुआ था, सो जिसमें इन्होंने हाईएस्ट एवर स्कोर किए हैं, एक किए हैं 173 अपना जो किए हैं। सो उसमें जो इम्पोर्टेंट है तो अभी फिलहाल उसके हिसाब से उनका जो रेटिंग है वो हाईएस्ट हो गया। जो आंसर है डेविड मलन, और कहाँ से? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ कमिटी constituted by the Environmental Ministry for implementation of Paris Agreement? सो अभी पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, कमिटी न्यू किया गया है बाय द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। सो उसका जो चेयरमैन है उनका नाम है CK मिश्रा, राइट। और नेक्स्ट वन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। S&P Global Rating forecasted what percent of contribution in the Indian economy for the current fiscal? So S&P Global Rating ने कितना कंट्रैक्शन अभी किया है इंडियन इकोनॉमी का इन द करंट फिस्कल ईयर? इसका जो आंसर है 9%। सो याद रखिए जो S&P ने किया है उसका जो कंट्रैक्शन किया है न्यू फॉर द इंडियन इकोनॉमी, उसका आंसर है 9% ऑफ कंट्रैक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी फॉर करंट फिस्कल ईयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the first vice president of World LPG Association WLPGA? So कौन बने हैं वर्ल्ड का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड LPG एसोसिएशन? उनका नाम है SM वैद्य, राइट। सो जो कि अभी SM वैद्य जी कौन है? अभी हमारा इंडिया का जो है ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है, राइट। उनका क्या है? वो अभी चेयरमैन है, उनको बना दिया गया है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड LPG एसोसिएशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which country is going to host 7 Team Club World Cup in 2021? सो कौन सा कंट्री है जो होस्ट करेगा 7 Team Club World Cup in 2021? सो उनका जो नाम है जापान। सो जापान अभी होस्ट करेगा कब? दिसंबर 2021 में, राइट। Where is the 5-star village postal scheme launched? Where is the 5-star village postal scheme launched to ensure the universal coverage of flagship postal schemes? कहाँ पर 5-star village postal scheme लॉन्च हुआ है और इसका मेन एम जो है इंश्योर करना यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल सिस्टम। जो फ्लैगशिप पोस्टल सिस्टम है उसको सब हर तरफ उसका कवरेज करने के लिए एक कहाँ पर ये हुआ है? सो ये हुआ है देहरादून में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
और इसको कौन लॉन्च किए? जो यूनियन मिनिस्टर है हमारा स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन का जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? संजय धोत्रे। सो संजय धोत्रे जी ने इसको लॉन्च किए हैं। कहाँ पर किए हैं? देहरादून में ये वाला होगा। 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम लॉन्च हुआ है, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और देहरादून जो है उत्तराखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज milk brand Amul in the list of top 20 global dairy procures released by the International Farm Comparison Network. So IFCN ने एक टॉप 20 ग्लोबल डायरी प्रोसीजर लिस्ट निकाले हैं। उनमें से जो इंडियन ब्रांड है अमूल, उसका रैंक क्या है? उसका रैंक है अमूल का 8th, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, who has authored the book Indian Icon, a cult called Royal Enfield? सो इस जो बुक है इंडियन आइकन ए कॉल्ड रॉयल एनफील्ड, इस बुक का जो ऑथर है उनका नाम है अमित राज। अमित राज जी ने इसको ऑथर किए हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोरे एंडरसन, who has announced his retirement from the international cricket, belongs to which country? सो कोरे एंडरसन वो अभी फिलहाल ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर किए हैं, अपना डिक्लेरेशन किए हैं। सो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? वो है न्यूजीलैंड से। Which Indian is replaced first on the list among the Indian by Fortune in its Business Person of the Year 2020 list, which is topped by Tesla CEO Elon Musk? सो फिलहाल ही अभी फॉर्च्यून जो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर उसमें जो लिस्ट निकाला गया है उसमें टॉप किए हैं टेस्ला सीईओ एलन मस्क। सो कौन सा इंडियन है जो अभी फर्स्ट आया है उस लिस्ट में? कौन सा एक इंडियन है जिनका नाम है उसमें फर्स्ट? सो उनका नाम है शांतनु नारायण। शांतनु नारायण जी ने जो इंडियन है फर्स्ट ऑन द लिस्ट एमंग द इंडियंस। सो इंडियन जितने हैं उनमें से फर्स्ट है शांतनु नारायण। और वो कौन है? वो है एडोब सीईओ, जो हमारा एडोब रीडर होता है ना उसका सीईओ है। सो उन्होंने इंडियन लिस्ट में टॉप किए हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टॉप किए हैं वो है टेस्ला सीईओ एलन मस्क, जो अभी रिसेंटली अभी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बने हैं। और वो किसको किए हैं? जो अमेजन का है उनको रिप्लेस किए हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Who has authored the book titled 40 Years with Abdul Kalam Untold Stories, released by Vice President M. Venkaiah Naidu? एक बुक है टाइटल्ड 40 Years with Abdul Kalam Untold Stories। सो इस बुक को कौन लिखे हैं? वो है शिवाथानु पिल्लाई। शिवाथानु पिल्लाई जी ने ये वाला बुक को लिखे हैं, राइट। सो और इस बुक को रिलीज किए हैं बाय द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी व्हाट इज द रेपो रेट फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर? सो जो हमारा रेपो रेट है वो अभी वही है, दैट इज 4%। सो रेपो रेट जो बना है वो अभी बना है 4%, राइट। और कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा जीडीपी बना है 2020-21 के लिए जो प्रोजेक्टेड किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी। सो जीडीपी को अभी किया गया है 7.5%, राइट। और जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है 4%, जो रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट है वो हमारा 3.35%, राइट। और ये वाला इम्पोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्स। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
who has been ranked first in the Kotak Wealth Hurun Wealthy Women list in terms of net wealth. सो कौन है जो कोटक वेल्थ हरुण वेल्दी वुमेन लिस्ट में टॉप की है इन टर्म्स ऑफ नेट वेल्थ? सो जो है उनका नाम है रश्मि नजर जी ने, उन्होंने टॉप किए हैं। और वो कौन है जो HCL टेक चेयरपर्सन है, वो है HCL के चेयरपर्सन, राइट। सो उनका नाम है रश्मि नजर जी ने ये वाले लिस्ट को टॉप किए हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as the chairman and managing director CMD of National Scheduled Caste Finance and Development Corporation? कौन है जो अभी फिलहाल अपॉइंटेड हुए हैं चेयरमैन एंड MD CMD ऑफ नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो न्यू चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार जिन्ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो उन्होंने अभी न्यू चेयरमैन बने हैं, CMD बने हैं, राइट। NSFDC। सो ये जो फुल फॉर्म है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखिए, रजनीश कुमार जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Raimona National Park. Raimona National Park is going to become the 6th national park for which state? So एक जो स्टेट है जहाँ पर अभी 5th 5 नेशनल पार्क थे, अभी न्यू एक एडिशन हो रहा है, दिस विल बी द 6th नेशनल पार्क। कहाँ पर? उसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। सो ये वाला कौन से स्टेट में है? ये है आपका आसाम में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Which state government extended its Swasthya Sathi health insurance scheme to cover the entire population of the state? सो एक स्टेट गवर्नमेंट जो अपना जो एक स्कीम था स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसको अपने स्टेट के अंदर होल पॉपुलेशन को एक्सटेंड किया है। उस स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे 2020? सो जो अभी हमारा इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे हुआ है सेलिब्रेटेड ऑन कब हुआ है? December 5 को, राइट। सो इसमें जो थीम था इस साल का वो था टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल वॉलंटियरी डे 2020। Who is the chairman of the task force formed for preparing a roadmap on imparting technical education in mother tongue? सो एक टास्क बनाया गया है जिसमें उनका काम है कि वो एक रोड मैप बनाएंगे जिसमें जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको पढ़ाया जाएगा इन द मदर टंग। सो उस टास्क फोर्स का जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है अमित खरे जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Gujarat International Finance Tech Gift City Regulator International Finance Services Center Authority, जो गिफ्ट सिटी का रेगुलेटर है IFSCA International Financial Services Center Authority has obtained membership of the International Association of Insurance Supervisors, और जो IFSC है उनको मेंबरशिप मिल गया है इसका IAIS। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। सो ये जो है IAIS, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड बासेल में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो मेन पॉइंट है, जो गुजरात गिफ्ट सिटी का रेगुलेटर है कौन है? IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, उनको एक मेंबरशिप मिला है किसका? IAIS, और उसका हेडक्वार्टर है बासेल स्विट्जरलैंड में।
The Reserve Bank of India forecasted what % of retail inflation for the third quarter of the current fiscal? आरबीआई ने फोरकास्ट किया है जो रिटेल इन्फ्लेशन जो थर्ड क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल, सो वो है 6.8%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which bank has become the first private lender in India to open its representative office in Nepal's capital Kathmandu? So काठमांडू जो है नेपाल्स कैपिटल, वहां पर फर्स्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया है जो अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन किया है. इसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. In partnership with which bank has Finin, a fintech company, launched itself as a neo bank? So कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप करके जो फिनिन है, ये कौन है? एक फिनटेक कंपनी है जो अपना एक लॉन्च किया है इटसेल्फ नियो बैंक. उस बैंक का नाम है एसबीएम बैंक. सो फिनिन ने एसबीएम बैंक के साथ पार्टनरशिप करके वो एक लॉन्च किया है नियो बैंक. Paytm has partnered with which small financial bank to empower MSME with instant digital loans? So Paytm ने एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है. एम क्या है? टू एम्पायर एमएसएमई विद इंस्टेंट डिजिटल लोन्स. सो डिजिटल लोन देके एमएसएमई को एम्पायर करने के लिए जो आंसर है उसका नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के साथ पेटीएम ने पार्टनरशिप किया है. Who from India has been named among 6 people named Asians of the Year by Singapore leading Delhi the Strain Times for their work in fighting COVID-19 pandemics? इंडिया से कौन है जो टॉप जो नेम हुआ है, जो 6 पीपल नेम हुआ है एशियंस ऑफ द ईयर? सो इंडिया से कौन है और इसको कौन डिक्लेयर किया है? सिंगापुर लीडिंग दिल्ली स्ट्रेट टाइम्स. और इनका क्या था मेन मोटिव कि जो कोविड-19 पैंडेमिक थे उनका जो फाइटिंग था देयर वर्क इन फाइटिंग द कोविड-19 पैंडेमिक्स. सो जो इंडियन है उनका नाम है आदर पूनावाला. सो आदर पूनावाला जी ने जो एक इंडियन है, उन्होंने ये जो 6 पीपल नेम हुए हैं एशियंस ऑफ द ईयर उनमें से ये एक है. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) forecasted what % contraction in 2020-21 financial year to 21. So important है कि Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ने फोरकास्ट किया है कितना 9.9%. और पहले कितना किया था? पहले किया था 10.2%, राइट. अभी हुआ है 9.9% कंट्रैक्शन. Which country has become the first in the world to give approval to a company to sell its laboratory grown chicken in the city state? So एक कंट्री है फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो अप्रूवल दिया है टू सेल जो लैबोरेटरी ग्रोन चिकन, मतलब जो चिकन है उसको लैबोरेटरी में ही ग्रोथ उनका हुआ है. सो उनका सिटी स्टेट में उसको अप्रूवल दिया है सेल करने के लिए, राइट. सो उनका जो फर्स्ट कंट्री है उसका नाम है सिंगापुर. Which state government launched the biggest ever direct benefit transfer scheme called अरुणोदय? So जो स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है उनका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है उसमें नाम है अरुणोदय. उस स्टेट का नाम है असम. सो असम ने एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लॉन्च किया है बिगेस्ट वन, उसका नाम है अरुणोदय. दैट इज लॉन्च बाय द स्टेट असम. तो असम के जो सीएम है वो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्बानंदा सोनोवाल. सो असम के सीएम का नाम है सर्बानंदा सोनोवाल जी. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
What is the rank of India in Global Terrorism Index of 2020 released by Institute of Economic and Peace? So इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स लॉन्च किए हैं, उसमें इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 8th, और ये लिस्ट को जो टॉप किया है वो है अफगानिस्तान, एंड उसके बाद है ईरान, एंड उसके बाद है नाइजीरिया, और उसके बाद है सीरिया। सो फर्स्ट है अफगानिस्तान, ईरान, नाइजीरिया एंड सीरिया, और इंडिया के रैंक है 8th। सो दिस इज द 8th मोस्ट इम्पैक्टेड जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। मीन्स ये जो है इंडिया है अभी 8th मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाय द टेररिज्म इन द लास्ट डिकेड्स। सो इसका मतलब ये नहीं कि कौन ज्यादा टेररिज्म को ये करता है, कौन ज्यादा अफेक्टेड हुआ है बाय द टेररिज्म। सो इसमें इंडिया का रैंक है 8th। सो अफगानिस्तान इज द मोस्ट अफेक्टेड वन बाय द टेररिज्म वन, सो दैट्स व्हाई ही इज द फर्स्ट वन। सो इंडिया का रैंक है 8th, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Asian Development Bank (ADB) approved loan amount of 50 million to improve financial management procedures and operational efficiencies in which state? So Asian Development Bank ने अभी फिलहाल ही how much 50 million फाइनेंस अप्रूव किए हैं for the development of financial management procedures and operational efficiencies, और वो स्टेट है वेस्ट बंगाल के लिए। New kid books Bahan Master Class is authored by whom? So जो न्यू किड बुक आया है बाहान मास्टर क्लास, उस बुक को जो ऑथर किए हैं, जो लिखे हैं, उनका नाम है अल्फ्रेडो कोवेली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which state's chief minister inaugurated the Suryadhar Lake in one of the districts? कौन सा स्टेट्स चीफ मिनिस्टर अभी एक लॉन्च किए हैं, इनागुरेट किए हैं सूर्यधर लेक इन वन ऑफ द स्टेट डिस्ट्रिक्ट? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इनागुरेट किए हैं सूर्यधर लेक। सो अभी अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि सूर्यधर लेक कहाँ पर है, वो है उत्तराखंड में, राइट। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राइट, सो उन्होंने ये वाला भी इनॉग्रेट किए हैं इन उत्तराखंड। Who has been appointed as the Secretary General of the लोक सभा? सो कौन है जो अभी फिलहाल ही अपॉइंटेड हुए हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोक सभा? उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। Who has been invited as the chief guest for the Republic Day celebration in January 2021 by the Indian government? So जिनको जो चीफ गेस्ट बनेंगे उनका नाम है बोरिस जॉनसन, वो है यूके के प्राइम मिनिस्टर। सो यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया है इंडिया का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो होगा जनवरी 26 को बाय द इंडियन गवर्नमेंट। Who has been appointed as the ambassador of Prime Minister Narendra Modi's Fit India? So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो है स्कीम फिट इंडिया, उनका एम्बेसडर जो सिलेक्ट हुए उनका नाम है कुलदीप हंडो। सो कुलदीप हंडो जी है जो है हमारा फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड उनको मिला था, राइट। सो ये है वो कोच ऑफ टीम इंडिया जो, राइट। सो उनको सिलेक्ट किया गया है फॉर द एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया, कुलदीप हंडो। Nongpok Sekmei police station. Nongpok Sekmei police station in which state has been chosen as the best performing police station in the country? So एक police station का नाम है Nongpok Sekmei police station जो कि चूज किया गया है बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। सो उसका नाम है मणिपुर।
सो ये मणिपुर का कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? थौबल। सो मणिपुर का थौबल डिस्ट्रिक्ट में ये वाला पुलिस स्टेशन है नोंगपोक सकनी पुलिस स्टेशन, जो है बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द करेक्ट आंसर। Great. So with this we have completed the December most important questions in the December first week, right? So after this we are going to upload some more and more current affairs series. So till that point, subscribe the channel and like, share with your friends so that everyone can get benefited from this, or keep supporting us so that we will feel motivated to upload some more and more great contents so that you can easily benefit from this. Till that point, keep studying. Thanks for watching our videos. Thank you.